انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ میں اپنے دادا یعنی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حکم بن ایوب کے گھر گیا اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گروہ تھا کچھ لوگوں کا، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، انہوں نے ایک مرغی کو باندھ رکھا تھا، ایک جگہ پہ جکڑ رکھا تھا اور اس کو نشان بنا رہے تھے اور تیر مارتے تھے نشانہ اپنا پختہ کرنے کے لیے۔ ان کو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فقال انس نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تصبر البہائم، آقا علیہ السلام نے اس عمل کو منع کر دیا، اسے حرام قرار دے دیا ہے کہ جانوروں کو اس طرح باندھ کر اپنا تیر کا نشانہ بنایا جائے، ان پر نشانہ بازی مت کرو، یہ اذیت دینے کا عمل ہے، اس پر اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اذیت ناک عذاب دے گا۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم میں آئی ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تتخذوا شیئا فیہ الروح غرضا، کوئی ایسا جانور کوئی چیز جو ذی روح ہے جس میں جان ہے تو کسی جاندار شے کو آقا علیہ السلام نے فرمایا نشانہ نہ بنایا جائے، کہ اس پر نشانہ سیکھا جائے، اذیت نہ دی جائے، سختی سے آقا علیہ السلام نے منع فرما دی۔ اسی طرح حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ اوپر کی حدیث بھی صحیح مسلم میں تھی، اس سے پہلی والی ہشام بن زید بن انس کی بخاری اور مسلم میں متفق علیہ تھی۔ سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، قریش کے کچھ نوجوان بچے تھے، ایک مرغی کو انہوں نے باندھ رکھا تھا، جکڑ رکھا تھا، اس کو نشانہ بنا رہے تھے، اس پر تیر چلاتے تھے، تو آپ کو دیکھ کر وہ جوان بچے بھاگ گئے۔ فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ جس شخص نے مرغی پہ ظلم کیا ہے اور اپنا نشانہ بنایا ہے، اذیت دی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اذیت ناک عذاب دے گا اور اپنی رحمت و شفقت سے محروم کر دے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اذیت دیتا ہے جانوروں کو، مرغیوں کو، پرندوں کو اپنا نشانہ بنانے کے لیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات کی ہے، یعنی جانوروں کو ٹارچر کرنا یا لانگ سفرنگ دینا، یہ ٹارچرنگ جو ہے اس کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے، اپنی رحمت سے اس شخص کو محروم کر دیتا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقتل شیء من الدواب صبرا، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جس شخص نے جانوروں میں سے کسی کو بھی اذیت دی اور اذیت کے ساتھ قتل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت بند کر دیتا ہے، اس کو حرام ڈکلیئر کر دیا گیا۔ ہم بات کریں گے ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب، ای ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ، میں ہوں سید احمد جیلانی۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ لوک پال بل کو راجیہ سبھا نے دی منظوری، انا ہزارے نے کیا خوشی کا اظہار۔ سفارتکار کی گرفتاری معاملے پر ہندوستان نے لی امریکہ کی خبر، امریکی سفارتکاروں کی مراعات میں کی گئی کمی۔ دہلی میں حکومت سازی پر غیر یقینی کیفیت برقرار، کانگریس سے اتحاد کے معاملے پر عام آدمی پارٹی عوام سے ہوگی رجوع۔ اور 24 دسمبر کو واگھا سرحد پر ہند پاک ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ، سرحد پر کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ ترمیم شدہ لوک پال بل کو راجیہ سبھا نے منظوری دے دی ہے، کل لوک سبھا میں اس پر بحث ہوگی۔ As amended be passed. The question is that the bill as amended be passed. Those in favor will please say aye. Aye.
Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill as amended is passed. 5 घंटे की बहस के बाद राज्यसभा में लोकपाल बिल मंजूर कर लिया गया। समाजवादी पार्टी ने इस बिल की शदीद मुखालफत की। उसने बतौर एहतजाज ऐवान से वॉकआउट किया। समाजवादी पार्टी को बिल की बाज तजावीज पर एतराज है। हुकूमत ने इसे तारीखी लम्हा करार देते हुए इस बिल की हिमायत करने वाली सभी जमातों का शुक्रिया अदा किया है। लोकपाल बिल आज राज्यसभा ने पास किया है। मैं सब पार्टियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गवर्नमेंट क्या इस बिल जो गवर्नमेंट ने पेश किया था उसका समर्थन किया है। मुझे विश्वास है कि कल या परसों लोकसभा में भी ये सर्वसहमति से पास होगा। ये एक ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि आवश्यकता थी और पूरे देश की मांग थी और समय आ गया था कि जो परिस्थितियां देश में उत्पन्न हुई थी कि इस प्रकार का एक कानून बने ताकि जो विश्वास लोगों को व्यवस्था में और राजनीति में जो विश्वास उठ रहा था ये विश्वास फिर से कायम हो। राजनीतिक दलों का योगदान का और श्रेय भी सभी को जाता है कि उन्होंने राजनीति से उठकर एक ऐसा फैसला किया है जो जनता चाहती थी, क्योंकि जनता करप्शन से त्रस्त है। राज्यसभा में बिल की मंजूरी महज एक रस्म थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अलावा सभी जमातें इसकी हिमायत कर रही थी। स्वागत योग्य है। मैं यही कहूंगा कि देश में जो भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो ईमानदार हैं उनको काम करने का अवसर मिलना चाहिए, और ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि सिर्फ वही ईमानदार हैं और बाकी भ्रष्ट है उनको भी समझना चाहिए कि देश का संसदीय लोकतंत्र चुनौती आती है तो अवसर के अनुसार खड़ा उतरता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम को और तेज करने के लिए और इसको एक निर्णायक और ले जाने के लिए ये जरूरी था कि सभी जो निजी कंपनियां हैं, सभी जो संस्थाएं हैं, अगर फॉरेन फंडेड एनजीओ हो या जो भी हो, जो सरकारी काम करते हैं और सरकार से पैसे लेते हैं उस काम के लिए, इन सबको भी लोकपाल के तहत लाना चाहिए था। इस बिल पर लोकसभा में बुध के रोज बहस होगी। 2011 में ऐवान नुमाइंदगान ने इस बिल को मंजूरी दी थी। ताहम राज्यसभा में बिल पर खूब हंगामा हुआ था, जिसके बाद इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया था। सेलेक्ट कमेटी ने इस बिल पर वसीतर इत्तेफाक राय बनाने के लिए कई तरामीम की सिफारिश की थी, जिसे काबीना ने मंजूरी के बाद मसवदे में शामिल किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर लोकपाल पर समाजवादी पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वोटिंग हम किसी ऐसे विधेयक के विरोध में नहीं है जिससे भ्रष्टाचार रुक रहा हो, लेकिन सिर्फ वोटों के खातिर दिखावे और भय के कारण जिस तरह विधेयक लाया गया उसके स्वरूप के हम खिलाफ थे। और मेरा आज भी मानना है कि इस विधेयक से देश की प्रगति रुक जाएगी। कोई मिनिस्टर, कोई MP, कोई सेक्रेटरी फाइलों पे दस्तखत नहीं करेगा। राज्यसभा में बिल को मंजूरी मिलने पर अन्ना हजारे ने खुशी का इजहार किया। ताहम उन्होंने कहा कि लोकसभा में बिल की मंजूरी तक उनका अनशन जारी रहेगा। और देश की आवाज सुनकर राज्यसभा में बैठे हुए समाजवादी पार्टी को छोड़कर सभी पक्ष और पार्टियों ने इस बिल को जो सपोर्ट किया है, इसलिए जनता के तरफ से मैं इन सबको धन्यवाद देता हूं। अभी कल यह बिल लोकसभा में आएगा और मुझे विश्वास है राज्यसभा में पास हो गया ना, अभी लोकसभा में पास होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। क्यों? लोकसभा में बैठे हुए, राज्यसभा में बैठे हुए जितने भी हमारे सांसद हैं, उनको ये अभी महसूस हो रहा है कि देश की जनता भ्रष्टाचार के विरोध में कानून मांगती है। ये देश की जनता को भ्रष्टाचार के विरोध में ये कानून मांगती है, लोकपाल।
ये महसूस होने लगा है। और इसीलिए आज राज्यसभा में पास हो गया है, कल लोकसभा में भी पास हो जाएगा, और लोकसभा में पास होने के बाद मैं अपना अनशन छोड़ दूंगा। सफारतकार की गिरफ्तारी मामले पर हिंदुस्तान ने अमेरिका की खबर ली। नई दिल्ली ने अमेरिकी सफारतकारों और उनके अहल खाना को हासिल मुराद कम कर दिए हैं। इसके साथ साथ उसने सफारत खाना और कौंसिल खाने के सभी अमले से शनाख्ती कार्ड जमा करने को कहा है। देवयानी खोब्रागडे की गिरफ्तारी मामले पर हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच ठन गई है। न्यूयॉर्क में नायब कौंसल जनरल देवयानी खोब्रागडे के साथ किए गए नाशाइस्ता सलूक पर यूं तो हिंदुस्तान सख्त एहतजाज पहले ही दर्ज करा चुका है और अमेरिका ने भी ये उम्मीद जताई थी कि इस एपिसोड का असर हिंद अमेरिका ताल्लुकात पर नहीं पड़ेगा, लेकिन वॉशिंगटन ने इस पूरे मामले पर मुआजरत खाही नहीं की, जिसका नई दिल्ली ने सख्त नोट लिया। नई दिल्ली ने अमेरिकी सिफारतकारों को हासिल खुसूसी मुराद कम कर दिए हैं। सिफारतकारों की एयरपोर्ट पास की सहूलत वापस ले ली गई है। इसके साथ साथ मशरूबात के इंपोर्ट क्लियरेंस पर भी रोक लगा दी गई है। नई दिल्ली ने अमेरिकी सिफारतकारों को शिनाख्ती कार्ड जमा करने की हिदायत भी दी है। इतना ही नहीं, दिल्ली ने अमेरिकी सिफारत खाना और कौंसिल खाने में खिदमात अंजाम दे रहे हिंदुस्तानी मुलाजमीन को दी जाने वाली तनख्वाहों की भी तफसीलात देने को कहा है। अमेरिकी स्कूलों में बरसरे खिदमत टीचरों के वीजा की तफसीलात भी नई दिल्ली ने वाशिंगटन को फराहम करने की हिदायत दी है। इन सब हिदायत के साथ साथ नई दिल्ली ने अमेरिकी सिफारत खाने के बाहर से सभी बैरिकेड्स हटा लिए हैं। I appreciate the steps the Ministry of External Affairs has taken. More steps should be taken against the United States until they give an unconditional apology for what is happening. हुकूमती सतह पर जारी इन सरगर्मियों के दरमियान देवयानी खोब्रागडे के वालिद ने वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की। वजीर दाखिला ने उन्हें ये यकीन दहानी कराई कि देवयानी को इंसाफ दिलाने की हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी। उन्होंने मुझे ये बताया कि दे आर अवेयर ऑफ दैट, दे आर फुली कन्विंस्ड दैट माय डॉटर इज बीइंग अननेसेसरी humiliated, harassed. It is a clear violation. The Kurdish say that is a clear violation of the human right what they have done, the violation of Geneva Convention. So government is working in every manner to ensure that no harm is done to my daughter. इससे कबल अमेरिकी अरकान पार्लियामेंट के वक्त से वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी और बीजेपी के वजारत उज़्मा के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने मुलाकात नहीं की थी। हत्ता के लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार और कौमी सलामती मुशीर शिव शंकर मेनन ने भी अमेरिकी वक्त से मुलाकात नहीं की थी। शायद ये पहली बार हुआ है कि अपने डिप्लोमेट के साथ हुई बदसलूकी पर भारत सरकार ने अमेरिका को चुनौती दे दी हो। अब शायद जाते जाते मनमोहन सरकार को इस बात का एहसास हुआ है कि चाहे आम नागरिक हो या फिर डिप्लोमेट, उनके साथ हुई बदसलूकी को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ शैलेंद्र वांगू, ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। बीजेपी ने इस पूरे मामले को अफसोसनाक करार दिया है। उसने इस सिलसिले में हुकूमत से मुनासिब कार्रवाई करने की बात कही है। खोब्रागडे के साथ न्यूयॉर्क में वहां की पुलिस ने और वहां के प्रशासन ने जो आचरण किया है उसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं। ये वियना कन्वेंशन की भावनाओं के प्रतिकूल है। जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया और जिस प्रकार से उनको हवालात में ड्रग एडिक्ट्स के साथ रखा गया जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, और जब वो महिला है, ये तो शर्मनाक है और बर्बरता है। हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं। ये घटना पहले नहीं हुई है। पहले भी भारत के पूर्व राष्ट्रपति के साथ हवाई अड्डे पर ऐसा व्यवहार किया गया जो मर्यादाओं के विपरीत था। कई लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए लोगों के वीजा के मामले में जो कार्रवाई की गई है वो देश ने देखा है, और अब भारतीय राजनयिकों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। हम अपेक्षा करेंगे कि भारत सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से लेगी। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।
2004 में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि ऊपर 35 से हम 28 आए हैं, बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पे दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दिल्ली में हुकूमत साजी के मामले पर तातुल खत्म होता मालूम नहीं हो रहा है। कांग्रेस से हिमायत ली जाए या नहीं, आम आदमी पार्टी अब इस पर आम आदमी की राय लेगी। कौशांबी में केजरीवाल ने साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रही है, बल्कि वो जिम्मेदारी उठाने के लिए शफाफ तरीका इख्तियार कर रही है। आम आदमी पार्टी कश्मकश में है, वो कांग्रेस का हाथ थामे या फिर इलेक्शन को तरजीह दे, या ये ताने सुनती रहे कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। आम आदमी पार्टी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, इसलिए वो हुकूमत साजी पर अवाम की राय हासिल करना चाहती है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं हमें क्या करना चाहिए। हम बाकी दलों की तरह बंद कमरे में निर्णय नहीं लेना चाहते। हम ये प्रश्न जनता के सामने रख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ चंद लोगों की पार्टी नहीं है, बल्कि इस देश के आम लोगों की पार्टी है। अवाम अपनी राय SMS, फोन या पार्टी की वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं। राय लेने का ये अमल इतवार तक जारी रहेगा। उसके बाद पार्टी आगे का लाहे अमल तय करेगी। पूरी दिल्ली की जनता को ये चिट्ठी लिखी जा रही है। हम ये चिट्ठी लिख रहे हैं। इस चिट्ठी की लगभग 25 लाख कॉपीज बनाई जा रही हैं और ये पूरे दिल्ली के अंदर बांटी जाएंगी चिट्ठियां। संडे तक हम इन तरीकों से भी करेंगे और हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं 70 विधानसभाओं में, पूरी दिल्ली में हर म्युनिसिपल वार्ड में एक एक जनसभा की जाएगी और जनसभा में ये चिट्ठी पढ़ के सुनाई जाएगी और जनता से उनकी राय पूछी जाएगी। ये सारी प्रक्रिया हम इस संडे को शाम तक कर लेंगे और जो जनता की राय होगी वो जनता की राय हम सोमवार को सबको बता देंगे, सारा कंपाइल करके, और जो जनता कहेगी हम सोमवार को वही काम करेंगे। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस और बीजेपी ने मदद की पेशकश की थी, जिस पर आम आदमी पार्टी ने इन दोनों जमातों के सामने कुछ शर्तें रखी थीं। कांग्रेस ने जवाब दिया, जबकि बीजेपी ने तो जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। 31 सीटें हासिल करने वाली बीजेपी जोड़ तोड़ का हवाला देकर हुकूमत न बनाने की बात कह चुकी है। ये पहला मौका है जब इत्तेहाद के लिए कोई जमात अवाम से रुजू कर रही है, वरना जमहूरियत में हुकूमत साजी के अमल में अवाम का रोल वोट देने तक ही महदूद रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर कांग्रेस ने इत्तेहाद पर अवाम की राय लेने के आम आदमी के फैसले पर ये रद्दअमल जाहिर किया है। ये उनका फैसला है, उसमें हमको कोई एडवर्स कमेंट नहीं करना चाहिए। हम उनको सरकार बनाने के लिए बाहर से पेशकश कीजिए कि हम बाहर से आपको समर्थन देंगे। सरकार बनाना न बनाना उनके हाथ में है, मुझको उस पर कुछ नहीं करना चाहिए। ये जरूर है कि टेलीफोन कंपनी वाले उनको बहुत धन्यवाद दे रहे होंगे कि SMS और टेलीफोन के बिल से टेलीफोन कंपनियों को कुछ फायदा हो जाए, लेकिन जनता का तो नुकसान हो रहा है लगातार। अब ये उनको सोचना है। वो जनता से चुन के आए हैं, वो जनता के प्रतिनिधि भी हैं। 28 लोग उनके जनता से दिल्ली ने चुन के भेजे हैं, उनको बड़ी कामयाबी दी है, तो उनको भी सोचना चाहिए कि जनता ने जिस अपेक्षा से वोट दी है, अगर अवसर मिल रहा है तो उनको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और हम समझते हैं कि ये संदेश उनके खिलाफ जा रहा है कि वो सरकार बनाना नहीं चाहते हैं, वो जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, जो वादे कर लिए उसको पूरे नहीं कर सकते हैं। इन कारणों से उनके खिलाफ मैसेज गलत जा रहा है, इसलिए आगे बढ़ के जो उचित संवैधानिक कार्रवाई है वो करनी चाहिए। कांग्रेस को लगता है वो बच रहे हैं जिम्मेदारी।
टीम इंडिया के साबिक कप्तान सौरव गांगुली ने सियासत में दाखिल होने से मुताल्लिक सस्पेंस बरकरार रखा है। सौरव गांगुली ने एक निजी टेलीविजन पर इंटरव्यू के दौरान सियासत पर किसी भी तरह का बयान देने से इनकार कर दिया, लेकिन गांगुली ने वाज़ेह नहीं किया कि वो सियासत में दाखिल होंगे या नहीं। वाज़ेह है सौरव गांगुली से कांग्रेस और बीजेपी राब्ते में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोलगेट घोटाले में मुबैना तौर पर फंसे अफसरशाहों के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए मरकज की इजाजत की जरूरत नहीं है। एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करप्शन के जिन मामलों की जांच अदालतों की निगरानी में हो रही है, अगर इनमें ब्यूरोक्रेट्स फंसे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सीबीआई को मरकज की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत की निगरानी में चलने वाले करप्शन के मामलों में जॉइंट सेक्रेटरी और इसके ऊपर के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ चाराजोई के लिए सीबीआई को मरकज से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आरएम लोधा की क़यादत वाली 3 रुकनी बेंच ने कोलगेट घोटाले में मुबैना तौर पर मुलव्विस नौकरशाहों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की इजाजत दे दी है। कोयला घोटाला मामले पर दायर करदा एक अरसदाश्त पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से कहा था कि कोर्ट की निगरानी में चलने वाले करप्शन के केसों में मरकज की इजाजत लेने से मुताल्लिक लुजूम को बर्खास्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के सेक्शन 6A के तहत अदालत की निगरानी में चलने वाले करप्शन के मामलों में मरकज की इजाजत की जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि कोई भी अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी है उसके ऊपर अधिकारी का कोई इन्वॉल्वमेंट आता था किसी भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ऑफेंस में, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सीबीआई को जाना पड़ता था 6A ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये बड़ा अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि कम से कम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन, जो कि बहुत थोड़े होते हैं, जैसे 2G था या ये कोलगेट है, 2-4 ही होते हैं, कम से कम उसमें जब कोई भी जांच संस्था इन्वेस्टिगेशन करती है, खासकर सीबीआई, तो उसको सरकार की परमिशन इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं लेनी पड़ेगी। अदालत ने मरकज की इस दलील को मुस्तरद कर दिया कि ज्वाइंट सेक्रेटरी सतह के अफसर के खिलाफ जांच के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मंजूरी जरूरी है। मरकज का ये भी कहना था कि ईमानदार अफसरों को हिरासानी से बचाने के लिए ये जरूरी है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने मरकज की दलील नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सीबीआई की खुद मुख्तारी की तरफ एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। कानून साज असेंबली और काउंसिल में तेलंगाना बिल पेश करने के खिलाफ सीमा आंध्रा इलाके में शदीद एहतजाज किया गया। बेशतर मकामात पर तालीमी व तिजारती इदारे बंद रखे गए। कई मकामात पर हुकूमत और सोनिया गांधी के अलामती पुतले नजर आतिश किए गए। करनूल जिले में मुत्तहदा रियासत के हामी तलबा ने शदीद एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कानून साज काउंसिल के चेयरमैन चक्रपानी और असेंबली स्पीकर एन मनोहर की जानिब से ऐवानों में तेलंगाना बिल पेश किए जाने की शदीद मुखालफत की। एहतजाजियों ने तेलंगाना मुसविदे की कॉपियां फाड़कर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। जिले के बेशतर मुकामात पर तलबा ने बतौर एहतजाज सड़कों पर इम्तिहान लिखा। अनंतपुर जिले की श्री कृष्णा देवराय यूनिवर्सिटी समेत दीगर मुकामात पर तेलंगाना बिल की मुखालफत में एहतजाजी रैलियां निकाली गयीं। यूनिवर्सिटी के तलबा ने चेन्नई कौमी शाहराह पर रास्ता रोक को भी मुनज़्ज़म किया। वहीं गुंटूर में मुत्तहदा रियासत के हामियों का शदीद एहतजाज देखा गया। कई मुकामात पर तलबा ने रास्ता रोक को मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों ने एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा करने की भी धमकी दी है। దొడ్డిదాన్ని ప్రవేశపెట్టారు। అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు, అదేవిధంగా శాసనపక్ష నాయకుడు, ముఖ్యమంత్రి లేకుండా స్పీకర్ కూడా అధిష్టానికి అడుగుల మండలితో వ్యవహరించాడు. అసెంబ్లీలో బిల్లు ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టాలని కూడా డీఓసీలు నిర్ణయించకుండా ఏకపక్షంగా కేంద్రం చెప్పినట్టుగా వ్యవహరిస్తా ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో కేంద్రం పత్రం మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. ఇప్పటికే గతంలో నాదేంద్ర భాస్కర్ రావు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెన్నుపడిపరిచి అధిష్టానం లొంగి వ్యవహరించాడు. అదేవిధంగా అతని యొక్క తల్లినటువంటి నాదేంద్ర మనోహర్ కూడా స్పీకర్ అధిష్టానికి అనుగుణంగా విభజన బిల్లుపై ప్రవేశపెట్టాలని వ్యతిరేకిస్తాను. నిన్న సీమాను తొలగిగా వ్యవహరిస్తారని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. दूसरी जानिब राजमंड्री में भी तेलंगाना बिल के खिलाफ तलबा ने शदीद एहतजाज किया। एहतजाजी धरने में बड़ी तादाद में तलबा ने हिस्सा लिया।
विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और दीगर मुकामात पर तेलंगाना बिल ऐवान में पेश करने के खिलाफ तालीमी इदारों को बंद रखा गया। एहतजाजियों ने कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी और यूपीए हुकूमत की शदीद नुक्ताचीनी भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हिंद पाक सरहद पर कशीदगी को कम करने के लिए कोशा है। इसी सिलसिले में दोनों मुल्कों के दरमियान डीजीएमओ सतह की बातचीत 24 दिसंबर को होगी। ये मीटिंग पाकिस्तानी हुदूद में वाघा में होगी। पाकिस्तान की जानब से मीटिंग की दावत दी गई थी, जिसे हिंदुस्तान ने कबूल कर लिया। 3 महीने कबल वजीर आजम मनमोहन सिंह और उनके पाकिस्तानी हममनसब नवाज शरीफ ने डीजीएमओ सतह की मीटिंग की तजवीज पेश की थी। मीटिंग में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, जबकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी मेजर जनरल अमीर रियाज करेंगे। ख्याल रहे कि रवां साल पाकिस्तान की जानब से तकरीबन 150 बार फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की जा चुकी है। इसके अलावा उसके फौजी कुछ मौकों पर हिंदुस्तानी हुदूद में घुसकर हिंदुस्तानी जवानों को निशाना भी बना चुके हैं। अरब लीग और हिंदुस्तान ने बाहमी ताउन को परवान चढ़ाने के लिए याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। हिंदुस्तान ने फिलिस्तीन कॉज की भरपूर हिमायत का इरादा किया है। 22 ममालिक पर मुश्तमिल अरब लीग और हिंदुस्तान ने बाहमी मफाद, इलाकाई और बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर मुज़ाकरात किए। शाम की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन भी मुज़ाकरात का मौजू रहा। I've conveyed our steadfast support to the Palestinian cause and expressed our support for the role played by the League in partnering the Middle East peace process towards establishment of the state of Palestine with East Jerusalem as its capital. अरब लीग और हिंदुस्तान ने मुख्तलिफ मैदानों में बाहमी ताउन को फरोग देने का फैसला लिया है। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद और अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल नबील अल अरबी ने आला सतह पर सियासी रवाबित के लिए मुरत्तब करदा नए तरीक़ेकार पर रजामंदी का इजहार किया है। अरब लीग में शामिल ममालिक और हिंदुस्तान के बीच ताल्लुकात के फरोग के लिए आला सतह पर सियासी रवाबित को परवान चढ़ाने का मंसूबा है। तिजारत, सरमायाकारी और दीगर मैदानों में भी बाहमी ताउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया। बाहमी ताल्लुकात को परवान चढ़ाने के मकसद से अरब लीग और हिंदुस्तान ने ताउन के फरोग की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। सकाफती और तवानाई शोबों के अलावा दीगर शोबों में आइंदा 2 सालों तक बाहमी ताउन के लिए अरब लीग और हिंदुस्तान के बीच एक याददाश्त मुफाहमत पर भी दस्तखत किए गए हैं। याददाश्तों पर दस्तखत के बाद अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल नबील अल अरबी ने हिंदुस्तान और अरब लीग में शामिल ममालिक के बीच मुमासिलतों को गिनवाने की कोशिश की। The background of the two areas here in India and in the Arab world are similar. We all came out of colonialism and maybe the same colonizer sometimes, and we are looking for the future to have our rights and to play a role in building the world. याद रहे कि अरब दुनिया के बेशतर ममालिक से हिंदुस्तान के काफी अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। आइंदा साल कुवैत ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करना चाहता है जहां हिंदुस्तान की सरकर्दा यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर और आला ओहदेदार अपने अरब हम मनसबों के साथ तबादले ख्याल करेंगे। अरब ममालिक और हिंदुस्तान के बीच $110 बिलियन से जायद की तिजारत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। गजा पट्टी के बेशतर मकामात हनूज जेर आब हैं। मकामी माहीगीरों ने सैलाब में फंसे हुए लोगों को जरूरी अशिया फराहम करने और उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए ताउन फराहम किया है। सैलाब में फंसे हुए अफराद को कंबल, ग़िज़ा और साफ पीने का पानी मुहैया कराया जा रहा है।